موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے عظیم رسول تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبے چوڑے تھے اور بے انتہا طاقتور تھے۔ ان میں 10 آدمیوں جتنی طاقت تھی۔ ان کا رنگ سانولا تھا اور کبھی کبھی بولتے ہوئے وہ اٹک جاتے تھے، یعنی سٹٹر کرتے تھے، لیکن یہ ان کی کمزوری نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ جاننا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ایک اچھا آدمی تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے جو بھی ایجپٹ کا بادشاہ بنتا ہے فرعون کہلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اس نے مصر کی سلطنت کا خزانہ یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی حکمت اور خواب کی تعبیر سے مصر کو قحط سے بچایا۔ بارش اور ہریالی کے 7 سال یوسف علیہ السلام نے گیہوں کو ایک خاص ٹیکنیک سے پرزرو کروایا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے اگلے قحط کے 7 سال جب سوکھا پڑا تب ایجپٹ میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور فرعون نے یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی بہن اور قبیلے کے سارے لوگ ایجپٹ بلا لیے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مائیگریٹ کر کے ایجپٹ آ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے شاہی زندگی گزاری۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی موت کے بعد اس فرعون کی بھی موت ہو گئی، اور جب دوسرا فرعون بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی موت کے بعد ایک اور فرعون آیا جو کہ اب تک کا سب سے بدتر فرعون تھا۔ دنیا کی ہسٹری میں فرعون جیسا بدترین بادشاہ نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آ پائے گا۔ فرعون اپنے آپ میں ایک بدترین مثال تھا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا، بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے لیبر ورک کرواتا تھا اور انہیں نچلے طبقے کی قوم بنا دیا تھا۔ مصر کے اصلی لوگ جو کہ قبطی کہلاتے تھے، ایلیٹ کلاس بن گئے تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ جب چاہے تب بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے تھے اور آدمیوں کو مار پیٹ دیتے تھے۔ یہ فرعون ظلم کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ غرور میں آ کے اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور مصر کے سارے لوگوں پر لازمی کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے خدا مانے۔ خدا تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور جب بھی کسی ظالم بادشاہ نے اپنی ظلم اور کفر کی حدوں کو پار کیا ہے، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے فرعون کی بربادی کا قصہ۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی اور مصر کے سارے لوگوں کو جلا دیا۔ سب تباہ ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کے کسی گھر کو آگ نہیں لگی اور وہ سب آگ سے محفوظ رہ گئے۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کاہنوں کو بلایا۔ خواب کی تعبیر کرنے والے ان ایکسپرٹس نے اس کا یہ مطلب نکالا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصر کے لیے تباہی بنے گا۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی بنی اسرائیل کی پوری نسل ختم کرنے کا پلان۔ مصر میں ہر دائی یعنی ڈیلیوری کرنے والی عورت کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی عورت پریگننٹ ہو تو اس کی اطلاع فرعون کی فوج کو دی جائے، اور اگر وہ دائی ایسا نہ کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ہر پریگننٹ عورت پر نگرانی رکھی جانے لگی، اور جیسے ہی کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا، فرعون کی فوج اسی وقت اس لڑکے کو قتل کر دیتی تھی۔ ہزاروں بچے بے رحمی سے قتل کیے جانے لگے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی، پر ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پریگننٹ تھی۔ انہوں نے اس مشکل دور میں اپنی پریگنینسی کو چھپائے رکھا اور دائی یعنی ڈیلیوری کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ پریگنینسی کمپلیٹ ہو گئی اور انہیں لیبر پین شروع ہو گیا۔ انہوں نے گھر پہ ہی بچے کو پیدا کیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی
होगी। प्रेगनेंसी तो उन्होंने छुपा ली थी, पर अब बच्चे को कैसे छुपाएं? बच्चा रोता है तो आवाज आसपास सुनाई दे ही जाती है, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही। फिर अल्लाह ने उन पे वही की, यानी उनके दिल में अपना पैगाम पहुंचा दिया। इसका जिक्र कुरान में आता है। और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे इस बच्चे के लिए कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर, खौफ या रंजो गम ना करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। फिर जब फिरौन की फौज इंस्पेक्शन के लिए बनी इसराइल की बस्ती आई और सख्ती से नए पैदा हुए लड़कों को तलाश करने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उन्हें छुपाकर दरियाए नील के पास ले गईं और एक बास्केट में उन्हें रखकर बहा दिया। ऐसा करते वक्त एक माँ के दिल की क्या कैफियत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का सीना फट रहा था और वो नम हो चुकी थी। क्या ज्यादा बदतर है, अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने कत्ल होते देखना या अपने ही हाथों से अपने न्यू बॉर्न बेबी को दरिया में बहा देना? बेशक ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दिलासा दिया और वादा किया कि वो इस बच्चे को उनके पास वापस पहुँचा देगा। जिंदगी के ऐसे मुश्किल लम्हात में ही अल्लाह पर यकीन रखना ईमान का असल टेस्ट होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह का हुक्म माना और अपने बच्चे को बास्केट में बहाते टाइम दिमाग से काम लिया और अपनी बेटी से बोला कि मेरे बच्चे के पीछे पीछे चलती रहो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दरिया के किनारे से उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। बास्केट तैरते तैरते फिरौन के महल तक जा पहुंची। वहाँ फिरौन की बीवी आसिया मौजूद थी। सैयदा आसिया एक बहुत नेक औरत थी और एक खुदा पर यकीन रखती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि फिरौन ने उनसे जबरदस्ती निकाह किया था, वरना उनके घर वालों को मार डालने की धमकी दी थी। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मजबूरी में फिरौन से शादी करी थी, पर कभी भी उससे मोहब्बत नहीं की, ना ही उसे खुदा माना, और उन दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर गमज़दा रहती थी और महल से बाहर आकर दरियाए नील के किनारे बैठ जाती थी। उस दिन जब आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा महल के बाहर दरिया के किनारे आकर बैठी थी, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी कनीजों से उस बास्केट को पास बुलवाया तो देखा कि उसमें एक नूरानी बच्चा है। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखकर फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है। बे औलाद होने की वजह से अल्लाह ने उनके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास उठा लिया। फिर वो उसे फिरौन के पास लेकर गईं और उसे ये बच्चा दिखाकर कहने लगी कि ये मेरी और आपकी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। लेकिन फिरौन ने वो बच्चा रखने की इजाजत अपनी बीवी को दे दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत फिक्रमंद और बेचैन थी। करीब था कि वो इस राज को जाहिर कर देती, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को इत्मीनान पहुँचाया। और देखिए अल्लाह कैसे अपने वादे पूरे करता है। बच्चा जब महल में पहुँचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। उसके पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध ना पिया। अल्लाह ने बाकी सबका दूध उन पर हराम कर दिया था। जो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश करती, नाकाम हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़े ये सब देख रही थी। कहने लगी, मैं आपको एक ऐसा घराना बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश करे और मोहब्बत से इसे दूध पिलाए। उससे पूछा गया कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो लोग इसके खैरख्वाह होंगे? उस समझदार बच्ची ने बोला, ये इसलिए कि वो लोग गरीब हैं और जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक औरत है जो इस बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना पसंद करेंगी। मजबूरन महल के लोग मान गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की फौज के साथ घर वापस ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। महल की कनीजों ने ये बात आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई तो सैयदा आसिया ने उनकी माँ को पैगाम भिजवाया कि वो महल आ जाएं ताकि बच्चा उनसे दूध भी पीता रहे
और महल में भी रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे शौहर और बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर महल में रहने के लिए नहीं आ सकती। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और का दूध कबूल नहीं किया था, इसलिए महल के लोग रोज खुद मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास दूध पिलवाने के लिए लाते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के महल से उनके लिए तोहफे आते थे। ये है अल्लाह की शान। अल्लाह ने वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया और उन्हें कत्ल होने से भी महफूज रखा। सोचने की बात यह है कि जिस फिरौन ने हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, उसी के महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू जवान हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाई। नेकी करने वालों का हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें सही और गलत की हिकमत अता करी। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही बनी इसराइल पर जुल्म होते हुए देखते थे, लेकिन जवान होने के बाद अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखना अब उनकी बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। वक्त गुजरता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनी इसराइल पर जुल्म होते देखते रहे। एक दिन दोपहर के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का वक्त था तो ज्यादा लोग उस वक्त बाहर नहीं थे। उन्होंने देखा कि फिरौन की फौज का एक आदमी बनी इसराइल के एक कमजोर आदमी को बेरहमी से मार रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उस मिस्री को रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। उनका मकसद उसको रोकना था, पर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, वो मिस्री एक ही मुक्के में गिरकर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। उन्होंने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है। यानी शैतान ने उन्हें गुस्से से बेकाबू कर दिया और उनसे ये गुनाह करवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से तौबा की, या अल्लाह, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे मुआफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम से ये गुनाह बिना किसी इरादे से हुआ था। ये खता थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बहुत मेहरबान है। अगले दिन उन्होंने फिर से उस बनी इसराइली आदमी को किसी और के साथ लड़ते हुए देखा तो वो समझ गए कि असल में ये ही झगड़ालू आदमी है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से वादा किया कि अब वो किसी गुनहगार की मदद नहीं करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़ाई को रोकने गए और उस आदमी से कहा कि असल में तुम ही लड़ाकू आदमी हो। उस आदमी ने जोर से बोला, मूसा, कल जिस तरह तुमने एक शख्स का कत्ल किया था, मुझे भी मार डालना चाहते हो? उस इंसान ने इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल उसकी जान बचाई थी। फसादी लोग कुछ इसी तरह के होते हैं। उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर भर में फैल चुकी है। फिर शहर के कोने से एक मिस्री आदमी दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला, मूसा, यहाँ के सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि फिरौन तो पहले ही उनसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो सैयदा आसिया के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा हुआ था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम से चिढ़ते थे और दिल में बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके पास मौका आ गया था कि किसी बहाने से मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दें। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होकर मिस्र के शहर से निकल गए। मिस्री उन्हें तलाश कर रहे थे और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए अपने जासूस लगा दिए थे। इस डर की सिचुएशन में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ निकल गए। उनके पास न खाना था, न पानी था और न ही सवारी का कोई जानवर था। वो बस पैदल जंगल में चलते जा रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। असल में मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनके जूते भी टूट गए, पर वो नंगे पैर चलते रहे। जब उन्हें भूख लगती तो वो पेड़ों के
पत्ते तोड़कर खा लेते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। मदियन अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शोएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते मदियन के पानी के पास पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों ने पानी की जगह बना रखी थी। वहीं के कुएं से वो लोग अपने लिए पानी लेते थे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास ऊँट हैं तो किसी के पास बकरियां। कुएं के पास उन लोगों ने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौज में पानी डाल देते हैं। जानवरों के लिए अलग हौज हैं और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ 2 औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को लिए दूर खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरानी हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? वो बोली, हम आदमियों की इस भीड़ में दाखिल नहीं होना चाहते। जब तक ये चरवाहा वापस ना लौट जाएं, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाते। और हमारे बाप बहुत बुरे हैं तो वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन चरवाहों को पीछे हटाया और पानी निकाल के उन औरतों की बकरियों को पिलाया और घर ले जाने के लिए भी उन्हें पानी दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए अल्लाह, तू जो कोई भलाई मेरी तरफ भेजना चाहे मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पैर मदियन पहुँचे थे। उनके पैर जख्मी थे और उन्हें शदीद भूख लग रही थी। उस वक्त वो बहुत जरूरतमंद थे, लेकिन वो किसी से भी मदद नहीं मांगना चाहते थे। उन दोनों में से किसी एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुन ली। वो वापस बस्ती में अपने बाप शोएब अलैहिस्सलाम के पास आईं और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करी। ये भी बताया कि इस वक्त वो जरूरतमंद हैं मगर बहुत खुददार हैं। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवाया। उनकी एक बेटी मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्मो हया से आई और फरमाया, हमारे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया, इसलिए वो उसका उजर देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार तो थे, लेकिन उस वक्त बहुत जरूरतमंद थे, इसलिए वो मौके की नजाकत को देखकर साथ चल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि वो लड़की शर्म के मारे छुप रही है, तो वो उससे आगे चलने लगे। कहीं मुड़ना होता तो वो लड़की उस डायरेक्शन में एक कंकड़ फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ मुड़ जाते। इस तरह वो उनके घर पहुँचे और उनकी मुलाकात शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने शोएब अलैहिस्सलाम को अपने बारे में बताया और जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो भी बताए। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप मत डरिए, आपने जालिम कौम से निजात पाली है। उनकी एक बेटी ने कहा, अब्बाजन, आप इन्हें काम पर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ईमानदार और मजबूत है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, शोएब अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर करी कि वो अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दें, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये सवाल पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं अपनी एक बेटी को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से एहसान होगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालूं। इंशाअल्लाह आप मुझे एक भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक चरवाहे का काम किया। वो बकरियों को चराते, कुएं से पानी का इंतजाम करते और घरों कारोबार का सारा काम संभालते। इस मुद्दत में उन्हें औलाद भी हुई। इस बात पर गौर करिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे बैठे थे और अल्लाह से दुआ मांगी थी, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह ने उन्हें मदियन में सेफ्टी प्रोवाइड करी, उनकी इनकम का जरिया बना दिया और उनको एक लाइफ पार्टनर और औलाद से नवाजा। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाजता है। मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है और ये दुआ बहुत मशहूर है। अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो इस दुआ को जरूर पढ़ा करें। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि काफी वक्त गुजर चुका है, अब मुझे मिस्र वापस जाना चाहिए।
پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر مصر کی طرف چلے، لیکن انہیں ایجپٹ واپس جانے کا راستہ نہیں پتا تھا۔ کسی سے پوچھنا چاہتے تھے پر کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ رات کے وقت سردی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ دکھائی دی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں۔ ریگستانوں میں اکثر رات کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی کو اس وقت آگ کی ضرورت تھی تاکہ وہ آگ کو تاپ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں آگ کا ایک انگارہ آپ کے پاس لے آؤں یا ہمیں کوئی راستہ ہی دکھائی دے جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس آگ کے پاس جاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ ان سے پہلی بار کلام کرنے والے ہیں اور انہیں نبوت سے نوازنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک زیتون کے پیڑ کے اندر سے نور نکل رہا ہے۔ جب وہ پیڑ کے اور قریب گئے تو وہ نور اور زیادہ نظر آنے لگا۔ جب وہ پیڑ کے اور قریب آئے تب اس پیڑ سے ایک آواز سنائی دی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک پاک میدان طوا میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اس کے یقین سے تمہیں کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کری۔ اس سے پہلے کسی نبی سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا تھا۔ فرشتوں، وحی یا سپنوں کے تھرو اللہ اپنا میسج نبیوں تک پہنچاتے تھے، پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کری۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے یہ پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پیڑ سے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی مجھے اس سے بہت سے فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو صرف ایک ورڈ میں بتا سکتے تھے کہ یہ ان کی لاٹھی ہے، پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ایک لمبا آنسر دیا، کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ سے دیر تک بات کی جائے۔ اللہ نے فرمایا، اسے زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے انہیں آواز دی، اے موسیٰ، آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً تم ہر طرح امن والے ہو۔ بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے پہلی سی صورت میں لا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور سانپ کو دم سے پکڑ لیا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے ہاتھ سے ایک سفید نور نکل رہا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں بتایا، جب تم دوسری بار اپنا ہاتھ گریبان میں لے جاؤ گے تو یہ روشنی چلی جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا، بس یہ دونوں معجزے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بھی جب خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو سٹر کرنے لگ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے مانگی تاکہ اللہ ان کی زبان کی گرہ کھول دے اور لوگ ان کی بات کو سمجھ پائیں، کیونکہ فرعون کے سامنے تو اچھے لوگ ڈر جاتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، میرے بھائی ہارون کو بھی اس کام میں میرا شریک کر دیجیے۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازنے کی دعا مانگی تاکہ فرعون کے خلاف اس بڑے کام میں انہیں اپنے بھائی سے سہارا اور مضبوطی مل سکے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کری اور فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہارے ساتھ دینے والے سارے لوگ غالب رہیں گے۔ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن مل چکا تھا اور انہیں نوازا جا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ کی طرف واپس گئے اور شہر پہنچنے کے بعد اپنی ماں اور اپنے بھائی بہن سے ملے۔ پھر ہارون علیہ السلام کو پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے محل کی طرف گئے، لیکن محل کے گارڈز نے انہیں اندر جانے نہیں دیا۔ صرف قوم کے سرداروں کو ہی فرعون سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی۔ 10 سال بعد ایجپٹ کے گارڈز موسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، انہیں تو اندر جانے دیا جا سکتا تھا، اس لیے گارڈز نے انہیں اندر جانے دیا۔ لیکن جیسے ہی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پیش ہوئے، فرعون نے انہیں پہچان لیا، بولا، تو موسیٰ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ فرعون نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ جانے دو اور ان کی سزائیں ختم کر دو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنا شروع کیا۔ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے یہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سال ہم میں گزارے ہیں؟ پھر تو وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہیں۔ فرعون نے اپنے احسانوں کے تلے موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کری اور وہ قتل بھی یاد دلایا جو موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ہو گیا تھا۔ پر اس بلیک میلنگ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹے اور جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم دیا اور اذن دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورے کانفیڈنس سے یہ باتیں کہی۔ فرعون نے پوچھا، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اس کی حکومت میں کسی اور کی عبادت کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سر عام دربار میں ڈکلیئر کر دیا کہ اس کائنات کا رب کوئی اور ہے، تب فرعون نے ہنسی اڑاتے ہوئے اپنے درباریوں سے بولا، کیا تم نے سنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لوگوں، تمہارا یہ رسول تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کنٹینیو کرتے رہے، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، کیونکہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ زمین و آسمان اور مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ چیزیں فرعون کے بس میں نہیں ہیں۔ جب فرعون کو لگا کہ یہ بات اب اس کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے، تب اس نے غصے میں موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارے سامنے کوئی کھلا معجزہ پیش کروں تو؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچ ہونے سے ہے تو اسے پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزہ ظاہر فرماتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اسی وقت ایک سانپ بن گیا اور فرعون کے دربار میں تیزی سے گھومنے لگا۔ وہاں کھڑے لوگ ڈر گئے اور افراتفری مچ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ اچانک نور سے چمکنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ 2 معجزات پیش کیے۔ انہیں دیکھ کے فرعون اور اس کے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔
दरबारियों ने जब देखा कि कोई फिरौन को ओपनली चैलेंज कर रहा है तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये क्या हो गया। लेकिन फिरौन ने फौरन पैतरा बदला। वो डर गया था कि कहीं दरबारी ईमान न ले आए, इसलिए फौरन बोल उठा, ये तो जादू है, यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम तेरे इस जादू से डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम तेरे इस जादू का मुकाबला करेंगे। एक दिन तय कर लो जिस दिन सबके सामने ये मुकाबला हो सके। मूसा अलैहिस्सलाम तो इसी मौके की तलाश में थे ताकि सबके सामने दावत दे सके। फिर एक जहां सब मुकाबले के लिए इकट्ठा होंगे। फिरौन ने 40 जादूगर बुलाए जो सब बड़े बड़े जादूगर थे और बचपन से ही जादू सीख रहे थे। शहर भर में इस मुकाबले का ऐलान किया गया और पूरा शहर इस कंपटीशन को देखने के लिए जमा हो गया। 40 के 40 जादूगर एक तरफ सफ बनाकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनके पीछे हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे। मुकाबला शुरू हुआ और पूछा गया कि पहले बाजी कौन डालेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, पहले जादूगरों को बाजी चलने दो। उन जादूगरों के पास लाठियां और लकड़ियां थी। उन्होंने वो सब जमीन पर डाल दी। देखते ही देखते वो खूब सारे सांप बन गई और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। असल में वो लकड़ियां सिर्फ हरकत कर रही थी, लेकिन जादूगरों ने सबकी आंखों पर जादू का पर्दा डाल दिया था, जिससे सबको लगा कि ये सांप बन चुकी है। सारे लोगों के दरमियान अफरा तफरी मच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खौफ महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, मूसा, खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को मैदान में डाला और अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ा और भयानक सांप बना दिया और वो जादूगरों के सारे सांपों को खाकर निगल गया। सारे जादूगर हक्का बक्का रह गए। वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं बल्कि असल सांप है। जादूगरों ने तो सबकी आंखों पे पर्दा डाला था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा असली था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को एक असली सांप बना दिया था। ये कोई आंखों का पर्दा नहीं था। सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो जादूगरों से बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। कहीं ये तुम्हारा उस्ताद तो नहीं जिसने तुम्हें जादू सिखाया है? और ये सारी कंपटीशन तुम्हारा पहले से ही प्लान था ताकि तुम लोग इस शहर से पानी इस्राएल को बाहर निकाल दो। ये तुम सबकी साजिश है। फिर फिरौन ने उन सारे जादूगरों को धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर खजूर के बेरों में लटका दूंगा। मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तुझे जो करना है कर डाल। इस दुनियावी जिंदगी के नुकसान के अलावा तू हमें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम उस रब के मुकाबले तुझे तरजीह नहीं देंगे जिस रब ने हमें पैदा किया है। फिरौन ने उन जादूगरों को फौरन सजा सुनाई और अरेस्ट करवा दिया। जादूगर ये कहते हुए गए, हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे पिछले गुनाह माफ कर दें और अल्लाह ही सदा बाकी रहने वाला है। इस वाक़े के बाद आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी तरह अल्लाह पर ईमान ले आईं। उनके अलावा सिर्फ 1-2 लोग ही ईमान लाए, बाकी पूरी कौम गुमराह ही रही। फिरौन ने अपने खास लोगों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया, पानी इस्राएल पर अजाब बढ़ा दिया जाए और मूसा को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उन तमाम चीज़ों से महफूज रखा जो वो लोग उनके अगेंस्ट प्लान कर रहे थे।
बनी इसराइल पर अजाब और जुल्म का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र करने की सलाह दी, पर जब फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी तब अल्लाह ने मिस्र वालों पर कहद मुसल्लत कर दिया। आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई, दरियाए नील खुश्क हो गया, लोग भूखे रहने लगे। फिरौन समझ गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और बोला, ऐ मूसा, अगर तू अपने रब से कहकर ये कहद बंद करवा दे तो हम भी बनी इसराइल पर तसद्दुद करना बंद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए और अल्लाह से बारिश की दुआ की और अल्लाह ने मिस्र पर फिर से बारिश बरसाना शुरू कर दी और कहद खत्म हो गया। लेकिन फिरौन फिर भी बाज नहीं आया। उसने बनी इसराइल पर फिर से जुल्म करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा। फलों की पैदावार कम हो गई। जिन पेड़ों पर भर भर के फल उगते थे अब उन पर सिर्फ 1-2 फल ही उगने लगे। खजूरों के पेड़ पर बस 1 आध खजूर उगती, अंगूरों की बेलों पर भी बस 1 आध अंगूर नजर आता। एक बार फिर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने परवरदिगार से दुआ करके वो हमसे इस आजमाइश को हटा दे तो मैं पानी इसराइल को जाने दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी तो फिर से मिस्र में खैर और बरकत का दौर शुरू हो गया। पेड़ों पर फिर से फल लगना शुरू हो गए। लेकिन फिरौन ने बनी इसराइल को फिर भी नहीं छोड़ा, उल्टा उन्हें मनहूस करार दिया। मिस्र पर सारी मुसीबतें पानी इसराइल की वजह से आती हैं। इसके बाद अल्लाह ने उन पर तूफान भेजा। दरियाए नील में ऐसा तूफान आया कि पानी मिस्र में दाखिल हो गया। बनी इसराइल के घरों के सिवा सब कुछ गर्क होने लगा। सैलाब सिर्फ मिस्रियों के घरों को बर्बाद करता था और बनी इसराइल के घर आकर रुक जाता था। वो अपनी आंखों से अपनी हलाकत को देख रहे थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने लगे, आए मूसा, इस मुसीबत को भी रुकवा दो। अपने रब से दुआ करो कि ये अजाब रुक जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और ये अजाब भी रुक गया। लेकिन मिस्र वालों ने बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद नहीं किया। इसके बाद टिड्डियों का अजाब शुरू हुआ। मिस्रियों के खेतों में टिड्डियों की फौज आती थी और उनकी पूरी फसल को चट कर जाती थी। लेकिन ये टिड्डियां बनी इसराइल के खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर से मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई गई और फिर से उन्हें इस अजाब से निजात मिली। बाज ना आने पर उन पर जुओं का अजाब शुरू हुआ। जुएं मिस्रियों के सर से निकलती थीं। उनके पूरे जिस्म में जुएं भर जाती थीं। जैसे ही कोई मिस्री के आसपास आता तो दूसरों पर भी जुएं गिरने लगती थीं। कोई सोने के इरादे से अपने बेड पर लेटता तो उसके बेड पर जुएं ही जुएं गिर जाती थी। ये आजमाइश मिस्रियों पर बहुत भारी पड़ी, लेकिन बनी इसराइल इस अजाब से महफूज थे। इसके बाद मेंढक का अजाब शुरू हुआ। मिस्रियों को मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे, लेकिन बनी इसराइल के घरों में मेंढक नहीं आते थे। जब भी कोई मिस्री अपना बर्तन खोलता तो उसमें मेंढक नजर आता। कोई अपने बिस्तर पर आता तो उस पर मेंढक होता। खाना खाने के लिए बैठता और लुकमा मुंह में रखता तो वो मेंढक बन जाता। फिरौन के महल में भी मेंढक ही मेंढक हो गए थे। ये एक बहुत घिनौना अजाब था जिससे मिस्रियों को तभी निजात मिली जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी। फिरौन जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका था। इसके बाद एक बहुत खौफनाक अजाब शुरू हुआ। दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। मिस्रियों का सारा पानी खून बन गया। एक ही कुएं से अगर मिस्री पानी निकालते तो उनका पानी खून बन जाता, लेकिन अगर बनी इसराइल पानी निकालते तो वो पानी ही रहता था। मिस्री पानी लेने के लिए बनी इसराइल की मदद लेने लगे, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल कुएं से पानी निकाल के मिस्रियों को देते, उनके हाथ में आते ही पानी खून बन जाता था। लेकिन अगर उसी पानी को बनी इसराइल पीते तो वो पानी बन जाता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि मिस्रियों ने बनी इसराइल से कहा, तुम अपने मुंह से हमारे मुंह में कुल्ली कर दो ताकि हमारी प्यास तो बुझ जाए। लेकिन ऐसा करने पर भी मिस्रियों के मुंह में जाते ही वो पानी खून बन जाता था। इस अजाब के सामने फिरौन भी बेबस हो गया था। मामला जब यहाँ तक पहुँचा तो वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दीजिए, और अगर आप इस अजाब को हम पर से हटवा देंगे तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को आजाद कर देंगे।
फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और अल्लाह ने वो अजाब हटा दिया तो वो सब अपनी बात से मुकर गए। इन लोगों ने ये सारे मौजज़ात अपनी आँखों से देखे, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए और अपने गुरूर और तकब्बुर में पड़े रहे और लगातार हक को झुटलाते रहे। जब इतने अजाब और मौजज़ात देखने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, रातों रात मेरे बंदों को ले जाओ। चुनाचे रात को सब बनी इसराइल निकले। वो अपने दरवाजों पर एक खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला ना कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वो सारे लोग अपना सारा सामान, माल और जानवर लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। फिरौन को जब सुबह ये सब कुछ पता लगा तो वो गुस्से से पागल हो गया। सोच में पड़ गया कि अब हमारी गुलामी कौन करेगा। फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल को पकड़ने के लिए चल दिया। लाखों सिपाहियों का लश्कर अपने घोड़ों और गाड़ियों पर सवार होकर तेजी से बनी इसराइल का पीछा करने लगा। बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचकर रुक गए। उन्होंने दूर से एक रेत का तूफान देखा और समझ गए कि फिरौन की फौज तेजी से उनकी तरफ आ रही है। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा और मूसा अलैहिस्सलाम से बोलने लगे, अरे मूसा, तुमने हमें यहाँ लाकर मरवा दिया। इससे अच्छा तो हम फिरौन के गुलाम ही देखते। अब हमारा क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। ये है ईमान बिल गैब। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। बस उसी वक्त समुंदर फट गया और पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और समुंदर के बीच में से रास्ता बन गया। बनी इसराइल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसका तसव्वुर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। फिर बनी इसराइल के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल दिए। हर इंसान अपने सामान, बच्चे और जानवरों के साथ सलामती से समुंदर के बीचों बीच से हैरत ज़दा होकर गुजर रहा था। किसी को भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक एक इंसान सलामती से गुजर गया। जब फिरौन वहाँ पहुँचा, उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। इस मौजज़े ने फिरौन और उसके लश्कर को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि समुंदर का इस तरह फट जाना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। ये मौजज़ा सिर्फ रब की तरफ से ही हो सकता है। फिर फिरौन ने सोचा कि जब मूसा और उसके लोग सही सलामत गुजर गए हैं तो हम भी यहाँ से गुजर सकते हैं। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि समुंदर के इस रास्ते पर उतरो और वो खुद भी अपने घोड़े के साथ समुंदर में उतर गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, उधर फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। फिर अल्लाह ने समुंदर को बंद हो जाने का हुक्म दिया और पानी के 2 पहाड़ एक सैलाब की तरह फिर से गिर गए और रास्ता डूब गया। फिरौन और उसके सारे लोग समुंदर में डूब गए। जब फिरौन डूब रहा था और उसने मौत का फरिश्ता देख लिया तो खौफजदा होकर बोला, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिस पर बने इस्राएल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन एक इंसान को सिर्फ तब तक मोहलत मिलती है जब तक वो जिंदा है। मौत का फरिश्ता दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती। जब फिरौन ने कहा कि मैं अब ईमान लाता हूँ, तब अल्लाह ने जवाब फरमाया, तू अब ईमान लाता है और इससे पहले सरकशी करता रहा और मुफ्सिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद आएंगे।
ह्यूमन बॉडी समुंदर या ज़मीन में आसानी से गल जाती है, लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। हज़ारों साल बाद फ़िरौन की बॉडी पाई गई और आज तक उसकी बॉडी नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन कायरो इजिप्ट में मौजूद है। अल्लाह ने खुलेआम ऐलान करा, उसे कुरान में भी फरमाया, और आज तक फ़िरौन की बॉडी निशानी के तौर पर मौजूद है, इजिप्ट के म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखी है। वो फ़िरौन जो अपने आप को रब कहता था, आज तक जलील हो रहा है। उसे ना ज़मीन ने डीकम्पोज किया, ना ही समुंदर ने गलाया। फ़िरौन से बड़ा जालिम बादशाह आज तक इस दुनिया में नहीं आया। जब अल्लाह ने उसका ये हाल कर दिया तो सोचिए कि बाकी जालिम बादशाहों का क्या हाल होगा। एक ऑथेंटिक हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देख सकते जिस वक्त फ़िरौन समुंदर में डूबते हुए ईमान का इजहार कर रहा था, उस वक्त मैं उसके मुंह में मिट्टी भर रहा था कि कहीं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे और अल्लाह उस पर रहम ना फरमा दे। जरा सोचिए कि अल्लाह कितना रहम करने वाला रब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये डर था कि इतने जुल्म करने वाले फ़िरौन को भी अल्लाह माफ़ कर देगा। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फ़िरौन के सारे लश्कर को डूबते हुए देखा और समुंदर को फिर से बंद होते हुए देखा और सुकून की सांस ली। फिर वो फिलिस्तीन की तरफ चले। रास्ते में उन्होंने एक बस्ती को देखा जिसके लोग बुतों की पूजा में मशगूल थे। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनका ये माबूद है। सोचिए, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के फौरन बाद भी उन्होंने ऐसी बात करी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं वो तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। क्या अल्लाह ताला की सिवा किसी और को तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें तमाम जहां वालों पर फौकियत दी है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से तूर के पहाड़ पर बुलाया और वहाँ 30 रातें गुजारने का हुक्म दिया ताकि अल्लाह उन पर तौरात नाजिल कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर तूर के पहाड़ पर चले गए और हारून अलैहिस्सलाम को उनका हाकिम बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 रातों की बजाय 40 रातें तूर के पहाड़ पर उसी जैतून के पेड़ के पास गुजारी जहाँ पर अल्लाह उनसे डायरेक्ट कलाम करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की, ए अल्लाह, मुझे आपको देखना है, मुझे अपना दीदार करवा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते क्योंकि दुनियावी आंख में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो मुझे देख सके। अल्लाह ताला का नूर इतना ज्यादा है कि इंसान की आंखें और जात उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब अल्लाह ने उस पहाड़ पर अपनी हल्की सी झलक दिखाई तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, ए अल्लाह, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपके हुजूर तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने इस सवाल पर शर्मिंदगी जाहिर करके माफी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया है और अपनी हम कलामी से तुम्हें बाकी लोगों से खास बनाया है, तो जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है उसका शुक्र अदा करो। इसके बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर की तख्तियों में तौरात लिखकर अता करी। इसमें अल्लाह की तरफ से 10 हुक्म थे जिनको मानकर बनी इसराइल को जिंदगी गुजारनी थी। इनको द 10 कमांडमेंट्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इन 40 दिनों में गुमराह हो गई। उन्होंने सामरी जादूगर की बातों में आकर अपने सारे सोने चांदी को गलाकर एक गाय के जैसा मुजस्मा बनाया। वो अंदर से खोखला था, लेकिन जब उसमें से हवा गुजरती तो उसमें से एक आवाज पैदा हो जाती थी, तो ऐसा मालूम होता था कि इस मुजस्मे से आवाज आ रही है।
موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کے مجسمے کی پوجا کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے تو اپنی قوم کو بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر غصے سے غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے پتھر کی تختیاں پھینک دیں اور غصے سے ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ موسیٰ علیہ السلام کو صرف 10 دن ایکسٹرا لگ گئے تھے، 30 کی بجائے وہ 40 راتوں کے بعد واپس آئے تھے۔ اتنے سے ہی ٹائم میں ان کی قوم نے یہ حرکت کری۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کری۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا لیکن یہ نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو غصے سے کہا، کیا تم صرف 10 دن کی تاخیر برداشت نہیں کر سکے؟ کیا تم اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھ سکتا ہے؟ سوچئے، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس گائے کے بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ سب کے سامنے سمندر میں پھینک دی اور فرمایا، تم سب کا رب صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تختیاں دکھائیں اور اللہ کے 10 احکام بتائے، لیکن ان لوگوں نے توریت کے احکام ماننے سے منع کر دیا اور بولے، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا، تور کا پہاڑ ہلنے لگا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ القدس کی طرف گئے جو کہ فلسطین کے پاس ہے۔ یہاں کے لوگ بہت طاقتور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ اس جگہ کو فتح کیا جا سکے۔ یہ جگہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اور تم بڑی آسانی سے ان لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ لیکن کوئی آدمی جنگ کے لیے تیار نہ ہوا اور سب بولے، تم اور تمہارا رب ہی جا کر لار لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں کے بیچ جدائی ڈال دے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سزا دی اور وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، انہیں یہاں سے واپس لے جاؤ اور قریب کی کسی بستی میں داخل کر دو۔ بنی اسرائیل وہاں سے چل پڑے لیکن وہ بستی نہ آئی۔ وہ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں پاتے۔ 40 سال وہ لوگ اسی طرح ریگستان میں بھٹکتے رہے لیکن وہ اس میدان سے نکل نہیں پائے۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ نے انہیں سیٹل کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایفرٹس نہیں کیے۔ اللہ ایسا رحمان ہے کہ عذاب کے ان 40 سالوں میں بھی ان پر رحم کرتا رہا۔ ان کے پاس جنت کا کھانا من و سلوہ اترتا تھا۔ سلوہ ایک قسم کے پرندے ہوتے جن کے جھنڈ ان کے پاس آتے جاتے تھے، جن کو وہ لوگ کھاتے تھے اور ان کو پروٹین ملتا تھا۔ اور من ایک قسم کی میٹھی چیز تھی جو آٹے جیسی باریک تھی اور رات کے وقت پتوں پر اوس جیسی جم جاتی تھی۔ یہ اسے پینے یا کھانے کی چیز میں مکس کر کے اسے یوز کرتے تھے جس سے انہیں کاربوہائیڈریٹس اور انرجی ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 پانی کے چشمے نکلے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ وہ لوگ جہاں بھی جاتے اس پتھر کو اپنے ساتھ لے جاتے اور جس بھی جگہ اس پتھر کو رکھتے وہاں سے 12 پانی کے چشمے فوراً جاری ہو جاتے تھے۔ اس ریگستان میں بہت دھوپ ہوتی تھی تو اللہ نے ان کے سائے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ ان کے اوپر ہر وقت بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تاکہ ان تک دھوپ نہ پہنچ پائے۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل خوش نہ ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کری، ہم ایک جیسا کھانا روز روز کیسے کھائیں؟ ہمیں پیاز کھانی ہے، لہسن کھانا ہے، آلو کھانا ہے، کھیرا کھانا ہے اور دال بھی کھانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا
ये जन्नत का खाना तुम्हें बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के मिलता है। तुम लोग क्यों अपने लिए मुश्किल मांगते हो? जन्नत के खाने की बजाय दुनिया का खाना मांगते हो। पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत नाशुक्री थी। फिर उनसे कहा गया, ठीक है, किसी शहर में चले जाओ और ये खाने उगाकर खाओ। एक दिन लोगों ने देखा कि किसी बुजुर्ग का कत्ल हो चुका है। कातिल का पता नहीं लग पा रहा था। सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। तब अल्लाह ने वही नाजिल की, एक गाय ज़िबा करो। वो लोग कहने लगे, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। आप अल्लाह से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय ना तो बूढ़ी हो ना बच्ची हो, बल्कि नौजवान गाय हो। अब जाके उसे ज़िबा करो। फिर उन लोगों ने पूछा, उसका रंग क्या होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, वो जर्द रंग की होनी चाहिए। उन लोगों ने फिर पूछा, अल्लाह से उसकी और तफसीलात पूछिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय काम करने वाली, हल जोतने वाली और खेतों में पानी पिलाने वाली ना हो, एकदम तंदुरुस्त और बेदाग हो। तब जाकर उन लोगों ने उस गाय को ढूंढना शुरू किया। इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स की गाय मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हर जगह ढूंढने के बाद एक यतीम लड़के के पास ऐसी गाय मिली। उस लड़के का बाप बहुत नेक और गरीब था। वो अपने बेटे के लिए इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं छोड़कर गया था। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह किस तरह रिज्क पहुंचाता है। बनी इसराइल इस गाय के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। उस लड़के ने इस गाय की खाल जितना सोना मांगा और बनी इसराइल को ये कीमत अदा करनी पड़ी क्योंकि ये गाय बहुत रेयर थी। अल्लाह ने बनी इसराइल को सिंपल हुक्म दिया था, एक गाय ज़िबा करो। अगर वो बस उस वक्त इस हुक्म पर अमल कर लेते तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन उन्होंने बार बार अननेसेसरी डिटेल्स पूछना शुरू कर दी। हर सवाल के साथ अल्लाह कंडीशन स्ट्रिक्ट करता गया। जो काम आसान था वो उनके लिए बहुत मुश्किल बन गया। जब बनी इसराइल ने इस गाय को ज़िबा कर लिया, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मरे हुए इंसान पर इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मारो। जब उस मरे हुए आदमी पर उस गाय का टुकड़ा मारा गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसने खुद बताया कि उसका कातिल कौन है और ये बताने के बाद वो फिर से मर गया। ये अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा था कि अल्लाह जिसे चाहे उसे जिंदा कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा था। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा करे। लेकिन ये मौजज़ा देखने के बाद भी बनी इसराइल का दिल नरम नहीं हुआ। उनके दिल में कुफ्र बहुत पुख्ता हो चुका था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, इस दुनिया में सबसे इल्म वाला इंसान कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो शख्स कौन है और कहाँ रहता है? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जगह बताई और फरमाया, समुंदर में सफर करो और अपनी टोकरी में एक मछली रख लो। जहाँ वो मछली खो जाए तुम्हें वो शख्स वहीं मिलेगा। इस वाक़े का जिक्र सूरह कहफ में आता है। मूसा अलैहिस्सलाम यूशा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर अपनी कश्ती समुंदर में लेकर इस सफर पर जारी हो गए। उन्होंने अपनी बास्केट में एक मछली रख ली। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आई तो वो सो गए। उसी वक्त वो मछली फड़की और समुंदर में छलांग लगाकर रास्ता बनाती हुई निकल गई। यूशा अलैहिस्सलाम ने ये सब होते हुए देखा, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। अगले दिन यूशा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बताई और वो दोनों वापस उस जगह आए जहाँ पर उस मछली ने अपना रास्ता बना लिया था। इस जगह के पास ही मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को सलाम किया और फरमाया, आप मुझे गैब का वो इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म ही नहीं उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपको नहीं टोकूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलने का इतना ही इसरार कर रहे हैं तो चलिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप मुझसे किसी बात के बारे में सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद उस बात की हिकमत आपको ना बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए और उनका खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। यूशा अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया गया। रास्ते में वो दोनों कुछ गरीब लोगों की कश्ती में सवार हुए। वो लोग मेहनत करके लोगों को दरिया पार कराने का काम करते थे और इसी काम से उनका घर चलता था। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी कश्ती में छेद कर दिया। कश्ती डूबने लगी। वो लोग पानी कश्ती से बाहर निकालकर फेंकने लगे और जैसे तैसे कश्ती बच पाई। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा, इन नेक लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? ये कश्ती उनका इकलौता रोजगार थी, उसमें छेद क्यों किया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और वो दोनों आगे बढ़े। दोनों एक जवान लड़के से मिले। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम शॉक्ड रह गए। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से बोला, ये आपने जुल्म किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम फिर बोले, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। वो एक गांव पहुंचे और वहां के लोगों से खाना तलब किया। वो गांव वाले बहुत रूड थे और उन्होंने मेहमान नवाजी से साफ मना कर दिया। वहां एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक करके दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर आप चाहते तो इस काम को करने के कुछ पैसे ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब आपका और मेरा सफर खत्म हुआ। अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। मैंने उन गरीब लोगों की कश्ती में छेद इसलिए करा क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सलामत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने उस कश्ती में छेद इसलिए कर दिया ताकि कश्ती में नुक्स की वजह से वो उस कश्ती को छोड़ दे और जब्त ना करे। कश्ती वाले तो अपनी कश्ती को आसानी से ठीक कर लेते, लेकिन अगर वो कश्ती उनसे छिन जाती तो उनके रोजगार का कोई जरिया नहीं बचता। और वो लड़का जिसको मैंने कत्ल किया, उसके माँ बाप बहुत नेक और ईमानदार लोग थे। ये लड़का जवान होके उन्हें बहुत परेशान करता और सरकश हो जाता। इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह उन्हें इस लड़के की बजाय एक नेक औलाद अता करे जो जवान होकर अपने माँ बाप से मोहब्बत करे और उनका ख्याल रखे। दीवार की मरम्मत मैंने इसलिए की कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका बाप बहुत नेक था। इस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था। अल्लाह की ये मर्जी थी कि ये दोनों बच्चे अपनी जवानी तक पहुंच जाएं और फिर ये खजाना निकले। अगर अभी ये दीवार गिर जाती तो ये जालिम गांव वाले उन बच्चों से ये खजाना छीन लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह का हुक्म था जिन पर आप सब्र ना कर सके। ये इल्म गैब होता है, अल्लाह के कुछ ऐसे फैसले जो समझ नहीं आते पर उनके पीछे हिकमत छुपी होती है। अल्लाह ने ये इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाया पर खिज़र अलैहिस्सलाम को इस इल्म से नवाजा। इससे मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि दुनिया में उनसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई और मौजूद है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे इल्म से नवाजता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए। उनकी कौम 40 साल तक उसी रेगिस्तान में भटकती रही। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें सजा दी थी। इस दौरान हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और वो वहीं उस मैदान में दफन किए गए। हारून अलैहिस्सलाम की वफात के सिर्फ 2 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। उनकी वफात भी इसी मैदान में हुई। जब मलिकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को थप्पड़ मार दिया। मलिकुल मौत ने अल्लाह के पास वापस जाकर कहा, ऐ रब, तूने हमें ऐसे शख्स के पास भेज दिया जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा के पास जाओ और कहो कि एक बैल के ऊपर हाथ फेरे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे
उतने साल उन्हें और जिंदगी मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बताया गया तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, ए परवरदिगार, उसके बाद क्या? अल्लाह ने फरमाया, फिर भी मरना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तो फिर अभी सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी कि उनकी मौत बैतुल मुकद्दस के करीब हो, चाहे वो एक पत्थर फेंकने जितने डिस्टेंस पर ही क्यों ना हो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करी और मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस के बाहर लेकिन बहुत करीब दफनाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बता देता। वो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के नीचे है। आज मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पब्लिकली नोन नहीं है, लेकिन लोगों ने थोड़ा अंदाजा लगाकर उनकी कब्र की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की है, पर उसमें भी इख्तिलाफ है। अल्लाह ने हिकमत के तहत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को हिडन रखा ताकि यहूदी और मुसलमान कब्र परस्ती और झगड़े में ना पड़ जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला लेसन ये कि जब जुल्म अपनी हद पर होता है, अल्लाह अपनी मदद बिल्कुल करीब ले आता है। फिरौन ने सोचा था कि वो बनी इसराइल के बच्चों को मारकर अपनी बादशाहत बचा लेगा, लेकिन अल्लाह ने उसी फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला। अल्लाह का प्लान हमेशा जुल्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आता है सबसे पावरफुल मोमेंट, समुंदर का फटना। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज, तब बनी इसराइल ने कहा कि अब हम क्या करें। मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान इतना पुख्ता था कि उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और वही हुआ, समुंदर फट गया और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर सारे रास्ते भी बंद हो जाएं, अल्लाह हमारे लिए वहाँ से रास्ता निकाल सकता है जहाँ से हमने सोचा भी ना हो। एक लेसन और मिलता है कि अल्लाह इम्परफेक्ट लोगों से काम लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जुबान की कमजोरी का जिक्र खुद करते हैं, फिर भी अल्लाह उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मतलब हमारी कमजोरियां अल्लाह के लिए रुकावट नहीं होती। अल्लाह हमारी नीयत देखता है और हमें कामयाब करना अल्लाह का फैसला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये लेसन मिलता है कि कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन उनके पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। इसलिए हमारी जिंदगी में जो भी हो, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि इसमें हमारे लिए अल्लाह ने कोई न कोई बेहतरी जरूर सोची होगी। हम लोग अक्सर ख्वाहिश करते हैं कि काश हम किसी नबी के जमाने में पैदा हुए होते ताकि हमारा ईमान भी स्ट्रॉन्ग होता। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नबी के पास होते हुए भी लोगों के दिलों में कुफ्र रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कितने सारे मौजज़े दिखाए, यहाँ तक कि समुंदर के फटने जैसा मौजज़ा देखने के बाद भी बनी इसराइल ने ये ख्वाहिश करी कि अल्लाह के सिवाय किसी बुत को पूजा जाए। इससे ये सबक मिलता है कि शैतान के वसवसों को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके वो आपका ईमान छीन सकता है। और ये सबक भी मिलता है कि अगर अल्लाह ने आपको दीन से और ईमान से नवाजा है तो ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह अगर किसी को हिदायत दे दे तो समझ लो कि उसे सबसे बड़ा खजाना मिल गया, क्योंकि बनी इसराइल जैसी कौमें इतने बड़े मौजज़े देखने के बाद भी हिदायत नहीं पा सकी। अगर अल्लाह ने आपको दीन की हिदायत दी है, इसलिए इस दीन पर स्ट्रॉन्गली जम जाइए और अपनी जिंदगी में ऐसी इबादतें और ऐसे काम कर लीजिए कि आपकी आखिरत संवर जाए। और जब आपको यकीन हो कि मेरा रब मेरे साथ है, तो समुंदर भी रास्ता दे देता है और फिरौन जैसे जालिम बादशाह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते।